So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. अगर किसी के दिमाग में yes or no question है कि ये person मेरे लिए meant है या नहीं है, so definitely this reading is for you and this reading is a beautiful reading. तो ये reading देख कर जाना, ठीक है. Secondly, you can choose between the numbers 1 and 2. ठीक है, तो मैं इसमें brief में आपको बताऊंगी between the numbers 1 and 2. आप चूज कर सकते हो. अगर आपको नंबर 1 पसंद है तो आप 1 देख सकते हो, आपको 2 पसंद है तो आप 2 देख सकते हो, बट ये रीडिंग ब्रीफ होगी एंड मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि yes or no is this person for you. ठीक है, is this person or this relationship is for you or not. So yes, I will start with the reading of pile number 1. Is this person or this relationship for you? Pile number 1. आई वुड से कि द रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉलिटिक्स है. लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑल इन द रिलेशनशिप एंड ये पर्सन भी थोड़े डाइसी हैं आपको लेकर. सो टॉकिंग अबाउट इज दिस पर्सन मेंट फॉर यू, yes or no, is this person for you? So I feel that looking at the cards, I see that this person doesn't deserve you, to be very honest. This person can be with you, but this person actually doesn't deserve you because the value system you carry, you are more ethical than this person is actually. And this person is like more of a playing mode person, like more in the mode of playing, or this person won't be that loyal as loyal you are to this person, but this person lacks loyalty that is coming like really strong. So yeah, but I feel that you would be having a 18 plus relationship that is like awesome, but I feel that that is a beautiful relationship, but this person I don't think would last for a longer time. And this relationship is like you would go into trauma. There is a bright possibility that you can go into depression because of this person, because you can have a look at this card, 9 of swords. So better keep distance from this person, try to get more information about this person, because again this person is like concealing facts. This person is not fully honest to you are being honest to this person, but this person is not honest to you. Let me tell you this. So the Emperor card shows honesty and sincerity from your end, but not from this person's end. So they are not that loyal, they are not that sincere. So as much as you think you would be the one who is taking all the initiatives, all the uh, steps you would be taking in this relationship, this person won't take more steps. This person would just use you physically and would leave you. That is coming like really strong. So जो honestly आता है मैं वही bluntly बता रही हूँ आपको, क्योंकि I don't want to give anyone false hope here. So if you are asking me, तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग आंसर इज नो, यू शुड, दिस पर्सन डजंट डिजर्व यू. बट ये रिलेशनशिप चलेगा अगर आप इसको ड्रैग करके चलते हो ना, कि ड्रैग करना है तो ये ड्रैग करके चलेगा. बट ये पर्सन जेन्युइन नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते, इसलिए यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी लाइफ से निकालना चाहते हैं. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. So you can't really trust this person. That is like coming really strong. And 3 of Wands card is like showing me that this person won't take that initiative. You would be the one who is like making all the efforts and making the relationship run. ठीक है, टेकिंग ऑल द एफर्ट्स, सारी चीजें आप कर रहे हो, आपकी तरफ से एफर्ट्स है, आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स है, तभी ये रिलेशनशिप चल रहा है. ठीक है. एंड ये पर्सन बस आपको 18 प्लस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन है, सेक्स एनर्जी है, बहुत ज्यादा है. सो दैट इज लाइक कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग. बट ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस इस पर्सन के एंड से नहीं लग रहे हैं. आपके एंड से ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस है, आप प्यार करते हो, आपके मन में फीलिंग्स है, बट ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करती. दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग, कि आप इतने जेन्युइन हो, आप इतने सीरियस हो, आप बहुत अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, बेटर देन दिस पर्सन. सो लाइक दिस इज कमिंग लाइक रियली स्ट्रॉन्ग. सो लेट मी चेक द लवर्स ओरेकल कार्ड. आई कांट मेक अ डिसीजन. सो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे. ठीक है. व्हाई डू आई फील दिस वे? सो दिस पर्सन इज लाइक रियली अट्रैक्टेड टू यू. I don't want to be alone. This person doesn't want to be alone. That's why this person is with you. Painful memories. So ये person आपके साथ rebond के लिए भी आ रहे हो, कि maybe just they want to move on from some past person. तो इसलिए ये person आपके साथ रह रहे हो. तो you can have a look कि क्या हुआ. एकदम cards flip हुए जैसे ही मैंने बोला. So I would take out one final card. मैंने उठा लिए कार्ड सारे. So आपने देखा होगा कि cards एकदम में ऐसे हुए. I can't
let go of you. So ये person आपसे इसलिए attached है because this person feels they are lonely, ठीक है. But इमोशनल अटैचमेंट व्हेन इट वुड कम टू सीरियस कमिटमेंट मुझे इस पर्सन के एंड से नहीं दिख रही है. अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग. पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया. मैसेज कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया पे, एंड वहां पर आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट द सिचुएशन, लाइक व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन. ठीक है, येस और नो, दिस पर्सन इज फॉर यू. पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. So talking about pile number 2, this person could be moving on from relationship. आप या ये person किसी past relationship से move on करते हुए मेरे को नजर आ रहे हो. So this person would be like completely lost, ऐसा लग रहा है. और आप दोनों के बीच में starting में बहुत arguments हो सकते हैं, issues हो सकते हैं, but ये person already बहुत ज़्यादा stressed, depressed है. ये चीज़ आ रही है because 10 of Swords card is showing past में depression रह चुका है इनको, stress रह चुका है because of some past relationship. ट्रू वाइब्स नहीं आ रही है रिलेशनशिप की. ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक मोर लाइक अट्रैक्टेड टू यू एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. सो या, दिस इज it. This person is like, you are attracted to this person and this person is also equally attracted to you. So बहुत चीजें ये अपनी past से related this person is hiding, which you need to find out about this person. Like this person is not being truly honest with you. Let me tell you, इनका कुछ past है, कोई traumatic past है which they are actually hiding from you people, which you need to know. So be very careful when it comes to trusting this person because this person is not that trustworthy. Let me tell you this. This person is not clear about थॉट्स. ये पर्सन मेच्योर है, समझदार है, बट इनका जो पास्ट है ये वो आपसे छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं. दिस पर्सन इज नॉट एबल टू ट्रस्ट यू फुली. देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी. 1-2 मंथ्स में यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही. गुड फ्रेंडशिप की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्रश लाइक सिचुएशन लग रही है, बट रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी में 2 महीने लग रहे हैं अभी. लाइक इट विल टेक टाइम क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये थोड़ा आराम से ही ये पर्सन रिलायबल है, एकदम धीरे धीरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. इनकी लाइफ का एक पार्ट है जहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट to show it to the outside world, the struggle they are doing, the efforts they are putting in, या जो भी पेन इनकी लाइफ में है ये किसी को बाहर वाले को दिखाना नहीं चाहते. इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में चेंजेस आए, बट इनकी लाइफ वैसे चेंज हो नहीं पा रही है जैसे ये चेंज करना चाह रहे हैं. सो दैट इज लाइक एग्जैक्टली व्हाट इज लाइक गोइंग इन देयर माइंड. सो दे वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर लाइफ, बट ये ले नहीं पा रहे हैं. कोई एक्स पर्सन इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, या फिर कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो. सो लाइक दिस पर्सन इज लाइक रियली सीम्स टू बी स्टक. व्हाट डू यू सी इन मी? सो दिस पर्सन फील्स एन अट्रैक्शन. व्हाट इज द ट्रुथ? सो दिस पर्सन फील्स कि आप भी कुछ कई बातें छुपा रहे हो. लाइक आई कांट टेक इट एनीमोर. सो मैंने बोला ना, इनका कहीं ना कहीं कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या कुछ पास्ट का हो सकता है जिसकी वजह से दिस पर्सन फील्स ट्रॉमेटाइज्ड, प्रेशराइज्ड. सो दैट इज लाइक कमिंग. ड्रग्स एंड अल्कोहल में भी है ये पर्सन. सो ड्रग्स भी लेते हो, अल्कोहल भी लेते हो. आई कांट कम टू यू नाउ. So this person can't come to you now, as I told you कि अभी आते हुए मेरे को लग नहीं रहा है. I don't know who I am anymore. So ये person अपने आप में बहुत confused है. इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए. किसी ने इनको हर्ट किया है. They have hurt me. So you can have a look at the cards. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. इनमें कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं आपके और इस पर्सन के बीच में. थोड़ा ये इनको हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाऊं या मेरी टर्म्स पे रिलेशनशिप चले. सो दैट इज लाइक कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग. सो ये चीज हो सकती है, बट आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट. तो ये अपने जो इनकी फीलिंग्स हैं ये अपनी ट्रू फीलिंग्स से भागना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. द रीजन बीइंग कि इनको शायद मे बी सच्चा प्यार करने से डर लगता है. सो दैट इज लाइक कमिंग. If you want to know exactly for that, you need to get the personalized reading done. Personalized reading के लिए आप मेरे को DM कर सकते हो Instagram predictions by यहाँ पे, उस पे आपको exact clarity मिलेगी. But as a general reading, I don't see this is the person right now. In the future, yes, there is a bright possibility of relationship. अगर आप
चाहो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अभी इस पर्सन को अपने पास से निकलने दो। जो भी एक्स है या जो भी थर्ड पार्टी है, कुछ भी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सो बहुत कुछ हो सकता है जिससे ये पर्सन प्रेशराइज है। तो उस चीज से इस पर्सन को निकलने दो, देन यू कैन हैव अ लुक एट द रिलेशनशिप पॉसिबिलिटीज विद दिस पर्सन है, बट यू नीड टाइम विद दिस पर्सन, लाइक 1-2 months ऐसा लग रहा है, 2-3 months आपको चाहिए अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना आपको रीडिंग कैसी लगी है।